Good morning dear students. So today we are to complete with the last lecture of the solid state, in which we are to complete the imperfection or defects in the crystalline solid by the topic impurity defect. As I have told you in the last lectures that the imperfection or the defects in the crystalline solids are of three types, in which two we have discussed, the stoichiometric and non-stoichiometric defects. So the last defect is the impurity defect. About what I have told you, that in this case we are to introduce a foreign particle to a particular crystalline lattice, to the particular crystalline solid, so as to improve its property. So basically यहाँ हमें क्या करना होता है, we are to improve the property of a crystalline solid. For that we are to introduce either the foreign atom or the ion to the crystal lattice, either to the lattice site or to the vacant interstitial site. As we have already studied in case of stoichiometric and non-stoichiometric defects. दोनों ही केसेस में हमने देखा था ना, दो तरीके के हम लोगों ने बात की, शॉर्ट की या फ्रैंकल. एक में आप क्या कर रहे हो, यू आर रिप्लेसिंग the particular lattice site, or in another you are introducing the impurity in the interstitial site. So in the similar manner, उन्हीं की तरह यहाँ पर भी क्या है, या तो आप lattice site में introduce कराओगे foreign atom को, or you introduce that in the vacant interstitial site. If you are introducing the impurity in the lattice site, then the formation of the solid is known as the substitutional solid solution. Means that results in the formation of substitutional solid solution while when you are entering or introducing the particular foreign atom in the vacant interstitial site. In that case, that is known as the interstitial solid solution. Now the dependency is on what? Means किस टाइप का solid solution form होगा, ये किस बात पर depend करेगा. When we are to replace the host atom to the foreign atom, in that case what we have to notice, it depends on the electronic structure of the impurity. Means जो electronic structure है वो foreign atom का host atom से about similar होना चाहिए. ठीक है, तभी तो आप replace कर पाओगे lattice site को, otherwise electrical neutrality would not be maintained. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि एकदम से चेंज हो जाए, जिसको अभी हम देखते हैं आगे. The next is, जब आप इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन की बात कर रहे हो, यानी इंटरस्टीज में आपका जो फॉरेन एटम है वो आपको इंट्रोड्यूस कराना है, तो उस केस में आपको क्या चाहिए, दैट इट मस्ट बी हैविंग स्मॉल साइज. ठीक है, तो उसके लिए आपकी डिपेंडेंसी किस चीज पर बन रही है, दैट इज ऑन द साइज ऑफ द इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी का साइज अगर लार्ज होगा तो वो इंटरस्टिशियल साइट्स में नहीं आ पाएगा. सो हियर द डिपेंडेंसी इज ऑन साइज ऑफ द इम्प्योरिटी. आई थिंक मस्ट बी क्लियर टू ऑल. मतलब हम दो तरीके से इम्प्योरिटी को एंटर करा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या तो लेटेस्ट साइट से में रिप्लेस कराएं होस्ट एटम से फॉरेन एटम को. ठीक है, एंड देयर आफ्टर या हम क्या करते हैं कि इंटरस्टिशियल साइट्स में जो हमारी वेकेंट स्पेस होती है उसमें हमारी इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस कराते हैं. इस केस में जो सॉलिड सोल्यूशन फॉर्म होता है उसको हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन कहते हैं, एंड इन द केस वी से दैट द इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन. Here the dependency is there on the electronic structure, and here the dependency is on the size of the impurity. ठीक है, अगर हम एग्जांपल इस केस में ले लें इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन में, तो स्टील इज द एग्जांपल. ठीक है, स्टील बेसिकली क्या होता है, दैट इज अ कार्बाइड ऑफ आयरन. क्या होता है, कार्बाइड ऑफ आयरन. इट मीन्स इन द केस कार्बन पार्टिकल्स, यानी कार्बन के एटम्स जो हैं वो Fe के इंटरस्टिशियल साइट्स में एंटर करेंगे, एंड वी कैन इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंगली. ठीक है, बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज और वी चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस is known as the doping process. So process of adding impurities so as to change the property of the solid is known as doping. इसको हम दूसरे फॉर्म में क्या कहते हैं, डोपिंग भी कहते हैं. ठीक है, now let's see if we are to do the impurity defect, or we are to change the property in case of ionic solid or in case of covalent solid. तो इसको एक एक एग्जांपल के थ्रू समझें. आयनिक सॉलिड के केस में क्या होगा,
In case of ionic solid, we can take the example of strontium chloride. If suppose some of the amount of strontium chloride is being added to the molten NaCl, ठीक है, जब उनको क्रिस्टलाइज किया गया, when they are about to cool, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी लेटेस्ट साइट्स थी सोडियम की, अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो इसी तरीके से होगा ना, that Na ion, Cl ion, Na ion, Cl ion, Na ion, ठीक है, हम मॉल्टन NaCl के साथ स्ट्रोंशियम क्लोराइड हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया एंड वी आर मेकिंग इट कूल नाउ, ठीक है, क्रिस्टलाइज होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है. नाउ व्हाट वी नो दैट सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1, मींस सोडियम इज इन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, व्हाइल आर स्ट्रोंशियम इज हैविंग 2 वैलेंसी. स्ट्रोंशियम की वैलेंसी क्या होती है, दैट इज 2. तो अगर हम स्ट्रोंशियम से रिप्लेस करेंगे सोडियम को, यानी स्मॉल अमाउंट इज देयर, तो वो कुछ ना कुछ लेटेस्ट साइट्स पर इंट्रोड्यूस हो जाएगी. तो अगर मैंने स्ट्रोंशियम आयन इंट्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पर, सो व्हाट विल हैपन, सोडियम की वैलेंसी 1 है. हमने सारे केसेस में देखा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट वी आर टू रिमूव 2 सोडियम आयन and that 2 vacancies would be created in the case. 2 होल क्रिएट हो जाएंगे जहां पर हमारा स्ट्रोंशियम की वैलेंसी क्या है 2 और सोडियम की वैलेंसी क्या है 1. So 1 strontium ion replace 2 sodium ion from the crystal lattice and these holes would be formed that increase the electrical conductivity. यानी electrical conductivity जो increase हो जाएगी इस crystalline solid की, वो किसकी वजह से हो जाएगी, ड्यू टू द होल्स और वैकेंसीज क्रिएटेड एट द लैटिस साइट. सो दैट इज अबाउट द आयनिक सॉलिड. दूसरा एग्जांपल हम कैडमियम क्लोराइड इन सिल्वर क्लोराइड ले सकते हैं. यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वैलेंसी का डिफरेंस है, Ag की वैलेंसी 1 होती है, कैडमियम की 2 होती है बेसिकली. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर भी आप 2 Ag को रिमूव करोगे तब एक कैडमियम आयन इंट्रोड्यूस हो पाएगा और दैट्स व्हाई the electrical conductivity would be increase in the case. ठीक है, यानी हमें electrical conductivity को increase करना है, then we have to add the strontium ion to the sodium in place of sodium ion. Now let's see the covalent solid. Covalent solid की अगर हम बात करें, so we can take the example in the cases of germanium, ठीक है, group 14 elements की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है. तो हम बात करें यहाँ पे अगर हमने जर्मेनियम या सिलिकॉन ले लिया, ठीक है, एंड वी आर टू डोप इट मींस वी आर टू ऐड द इम्प्योरिटी इन द केस. तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को देखना होता है, ठीक है. आपने क्रिस्टल लैटिस में इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस कराना है एट द लैटिस साइट, ठीक है. सिलिकॉन और जर्मेनियम की जगह आप ये तो है नहीं कि 17th ग्रुप का मेंबर ले आओगे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट. तो आप क्या करोगे, नियर बाय लेकर आओगे, यानी आप 13th ग्रुप का लेकर आ सकते हो या 15th ग्रुप का लेकर आ सकते हैं, ठीक है. सो यू इंट्रोड्यूस द इम्प्योरिटी आइदर ऑफ ग्रुप 13 और ग्रुप 15 एलिमेंट्स कॉज दे आर हैविंग अराउंड सिमिलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. भाई सेम तो नहीं है बट बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है. क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम किसकी बात करें, ग्रुप 14, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, ग्रुप 15 में कितने होते हैं 5, ग्रुप 13 में कितने होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. अब जो हमारा ग्रुप 14 होता है वो क्या कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, हमें पता है टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है. तो सिलिकॉन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है. अब जब आप इसे डोप करोगे फॉस्फोरस या आर्सेनिक के साथ, तो बिकॉज इट इज हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 4 बॉन्ड वुड बी फॉर्म्ड इन द केस, ठीक है. 4 तो बॉन्ड बन जाएंगे सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम के साथ, बट व्हाट अबाउट द लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो वो रह जाएगा हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में काम में आएगा. सो इट इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द क्रिस्टल लैटिस. इन द सिमिलर मैनर जब मैं बात कर रही हूँ 13th ग्रुप की, तो 13th ग्रुप में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अब नाउ 3 तो बॉन्ड बना जाएंगे, 4th
सिलिकॉन या जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, ठीक है। सो दैट क्रिएट होल, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया और वहां पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या बन जाएगा, देयर वुड बी अ होल फॉर्म्ड इन द केस। तो नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हो जाएगा, दैट इज दैट पर्टिकुलर होल। सो इन द केस अगर हम फास्फोरस या आर्सेनिक एंटर कराते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है और इसके लिए कंडक्टिविटी के लिए होल रिस्पॉन्सिबल है। सो इन दिस केस पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। इसका डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है। सो वी विल नॉट डिस्कस अ लॉट अबाउट इट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो मैंने क्या बताया आपको एग्जांपल के थ्रू कि हम ग्रुप 14 एलिमेंट में जब ग्रुप 13 या 15 ग्रुप का एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उस केस में हमारी कौन सी इम्प्योरिटी बनती है, बेसिकली दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। दो तरीके के डिफेक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक में भी। जब आप 15 एंटर कराओगे दैट वुड बी इलेक्ट्रॉन रिच डिफेक्ट, and when you are entering group 13 element that would be electron deficient defect, ठीक है। क्यों इसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 15 ग्रुप में और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है 14 ग्रुप से, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो बेसिकली दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो डिफेक्ट्स हमारे हो गए तीन तरीके के, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। On the basis we are having one of the question that generally be there in the examination, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है डिफेक्ट्स के बेसिस पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट में न्यूमेरिकल पार्ट में। so you first take the screenshot of it, then we will discuss about this question. I think you must have taken. so इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन किस बारे में है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट बेसिकली सॉरी दैट इज अबाउट द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सॉरी इम्प्योरिटी नहीं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के रिगार्डिंग है क्वेश्चन। देखिएगा केवल डिफेक्ट्स में इसी का पर बेस क्वेश्चन आता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, एनालिसिस शोज दैट निकेल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला Ni.980, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Ni एग्जिस्ट एज Ni2 पॉजिटिव एंड Ni3 पॉजिटिव एज आयंस, ठीक है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने रीजन ही यही पढ़ा था। रीजन हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली जो वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं, तो उन केस में क्या आ जाता है, डिफेक्ट किसकी वजह से आता है, वेरिएबल बैलेंसी की वजह से डिफेक्ट आ जाता है। यानी देयर मे बी द परसेंटेज ऑफ टू डिफरेंट वैलेंसीज इन अ पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, निकेल की केस की बात कर रहे हैं। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निकेल ऑक्साइड का फॉर्मूला NiO होता है, लेकिन यहाँ पर हमें निकेल ऑक्साइड का नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की वजह से फॉर्मूला दिखाई दे रहा है Ni.980। अब आपको ये बताना है कि इसमें निकेल 2 पॉजिटिव का फ्रैक्शन क्या है और निकेल 3 पॉजिटिव का बेसिकली फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। सो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, फ्रैक्शन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर निकेल 2 पॉजिटिव आयन एंड निकेल 3 पॉजिटिव आयन वी कैन कैलकुलेट। हमें क्या पता है, हमें मालूम है कि निकेल ऑक्साइड में, है ना, इन निकेल ऑक्साइड रेशियो ऑफ निकेल एंड ऑक्सीजन कितना होता है, रेशियो ऑफ निकेल एंड O इज इक्वल टू 1:1। बेसिकली यही हमारा रेशियो इसमें दिखाई दे रहा है निकेल ऑक्साइड के केस में, दे आर हैविंग द रेशियो 1:1। लेकिन जो हमें फॉर्मूला गिवन है दैट इज Ni.980। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर Ni3 पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन है वो इंट्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो आ रही है हमारी स्ट्रक्चर या फॉर्मूला जो आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है। सो वी कैन सपोज लेट Ni3 पॉजिटिव ions
बी एक्स। ठीक है, हमने क्या सपोज कर लिया कि Ni3 पॉजिटिव आयंस जो हैं वो हमारे कितने हैं, x। सो नंबर ऑफ Ni2 पॉजिटिव कितने हो जाएंगे, दैट वुड बी, हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 0.98 आ रहा है, सो इट वुड बी 0.98 माइनस एक्स। ठीक है, सो हमारे Ni2 पॉजिटिव वाले कितने हो जाएंगे, 0.98 x हो जाएगा। ठीक है, और Ni3 पॉजिटिव वाले कितने हैं हमारे, x हैं। ओके, नाउ व्हाट वी नो दैट NiO के केस में चार्ज क्या है, दे आर न्यूट्रल। ठीक है, देयर इज नो चार्ज ऑन निकेल और ऑक्सीजन, कहीं पर कोई बच ही नहीं रहा है, दे आर बेसिकली, निकेल ऑक्साइड कैसा है, निकेल ऑक्साइड इज न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट चार्ज ऑन निकेल इज इक्वल टू चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, लिख सकते हैं। सो चार्ज ऑन निकेल कितना होगा, यहाँ पर निकेल के 2 पॉजिटिव वाले और 3 पॉजिटिव वाले एटम हैं, तो निकेल के जो आपके 2 पॉजिटिव वाले एटम हैं वो कितने हैं, 2 पॉजिटिव वाले एटम हो जाएंगे 2 × 0.98 माइनस एक्स, और 3 पॉजिटिव वाले कितने हो जाएंगे, प्लस 3x। इट वुड बी सो और नॉट, मैंने कहा कि नंबर ऑफ निकेल आयंस हमारे पास कितने हैं, 0.98 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि x हमने क्या सपोज कर लिया, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ निकेल 3 पॉजिटिव आयंस। सो टोटल चार्ज कितना बनेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज वाले इतने एटम्स हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज वाले इतने एटम हैं, दैट वुड बी इक्वल टू 2, क्योंकि ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 होता है। इक्वलाइज कर लेंगे दोनों को। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 1.96, है ना, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2x प्लस 3x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो सिर्फ x रह जाएगा पॉजिटिव में, तो 1.96 x इज इक्वल टू 2। सो सॉरी, साइन भी आएगा, 1.96 प्लस x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1.96 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0.04। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई। x हमारा क्या था, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ निकेल आयंस, निकेल 3 पॉजिटिव आयंस। ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट द फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन के साथ हम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई एम टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ निकेल 3 पॉजिटिव। सो निकेल 3 पॉजिटिव के एटम्स कितने कैलकुलेट आए, 0.04। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, दैट इज 0.98 into 100, so that you would be able to calculate the percentage। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ निकेल 3 पॉजिटिव आयन, चाहे तो फॉर्मूला भी लिख लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ निकेल 3 पॉजिटिव अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स into 100। So like this you can calculate the value, और जब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो तो you would be getting 4.01%। अब मुझे निकेल 2 पॉजिटिव की अगर कैलकुलेट करनी है तो वो कितनी हो जाएगी, that would be 100 minus 4.01 and that would be around 95.99%। So निकेल 2 positive would be 95.99% and निकेल 3 positive would be 4.01% over there। So this kind of numerical you would be able to get in the examination। तो ये Fe पर भी हो सकता है, जैसे कि हमने 3 एग्जाम्पल बेसिकली बात की थी, निकेल ऑक्साइड, निकेल सल्फाइड, है ना, FeS, FeO, तो उन पर इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस सेम टाइप के मिल सकते हैं। सो न्यूमेरिकल इज नॉट द इशू इन द चैप्टर, बहुत सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, डेंसिटी पर बेस्ड आते हैं या इस पर बेस्ड आते हैं, ये फॉर्मूला पर बेस्ड आते हैं, दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट इन योर 12th CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। एक छोटी सी चीज थी जो बीच में आपकी मिस हुई है, दैट इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, जिसको मैं रेडियस रेशियो के बेसिस पर आपको बताना चाह रही थी। रेडियस रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, रेडियस रेशियो इन द फॉर्म ऑफ वॉइड एंड स्फीयर। ठीक है,
अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने रिलेशनशिप कैलकुलेट किया था रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ एटम के बीच में, ठीक है। सो छोटी सी उसके बारे में और बात कर लेते हैं, वो एक बीच में आपका टॉपिक मिस हो गया है। सो रेडियस रेशियो बेसिकली क्या है, जो हम लोगों ने रिलेशनशिप कैलकुलेट किया था, ठीक है, जो हम लोगों ने रिलेशनशिप कैलकुलेट किया था ना टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में, दैट ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस हमने सपोज किया था स्मॉल आर, ठीक है ना, और हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड आउट किया था इन द केस दैट वाज r इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R, ये किसका रेडियस था, दैट वाज द रेडियस ऑफ द एटम और अ स्फीयर, ठीक है। तो ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में रिलेशनशिप निकाला था, और टेट्राहेड्रल के केस में 0.225 R निकाला था, ठीक है। ये था ऑक्टाहेड्रल के केस में, ये था टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में, ठीक है। तो हमें बताना है कि हम रेडियस रेशियो के बेसिस पर स्टेबिलिटी कैसे बता सकते हैं, ठीक है। सो रेडियस रेशियो के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूंगी तो r सीधे सीधे मैं वॉइड लिख देती हूँ, r वॉइड अपॉन r स्फीयर या r एटम लिख लो, ठीक है, दैट वुड बी द रेडियस रेशियो, है ना। और इस केस में अगर मैं r वॉइड अपॉन कैपिटल R लिख दूं तो दैट वुड बी इक्वल टू 0.414 इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 0.225 इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, हो जाएगा। नाउ रेडियस रेशियो हम ये भी कह सकते हैं दैट रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन, यस और नो, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, वी कैन से दैट इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आयनिक सॉलिड्स में वॉइड्स में कौन जाता है, कैटाइन। क्यों जाता है, क्योंकि कैटाइन का साइज स्मॉल होता है, ठीक है ना, बेसिकली दैट वी से दैट। तो वॉइड की जगह मैं कैटाइन लिख सकती हूँ और स्फीयर की जगह मैं एनाइन लिख सकती हूँ, क्योंकि उसका लार्ज साइज होता है, और मैंने आपसे कहा था कि ये जो है वो एटम्स की स्पेस ले लेता है, पार्टिकल्स की स्पेस ले लेता है, और ये स्पेस लेता है वॉइड्स की। सो नाउ लेट्स सी, ऐसे समझते हैं, दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज आवर वॉइड एंड दैट वुड बी आवर वॉइड। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये अगर कैटाइन का साइज है, ये फिर दूसरे कैटाइन का साइज है, ये तीसरे कैटाइन का साइज है, ठीक है, तो किसका रेडियस रेशियो सबसे ज्यादा होगा, तो आप क्या कहेंगे कि इसका रेडियस रेशियो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, होना ही चाहिए। जितना कैटाइन का रेडियस बढ़ता चला जाएगा, उसका साइज बढ़ता चला जाएगा, उतना ही रेडियस रेशियो ज्यादा आता चला जाएगा, and you know that is directly proportional to the stability of crystalline solid, ठीक है। कैसे, let's see, if we are talking about ionic solid, तो ionic solid के केस में स्टेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करेगी, that is about the electrostatic force of attraction between cation and anion, ठीक है, किस बात पर डिपेंड करेगी कि कैटाइन और एनाइन के बीच में कितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब भाई कैटाइन को जितने ज्यादा एनाइन सराउंड करेंगे उतना ही ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर कम एनाइन सराउंड कर रहे हैं तो कम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा सराउंड कर रहे हैं तो ज्यादा होगा। अब जितना छोटा मेरा कैटाइन का साइज होगा, सराउंड करने वाले एटम्स तो कम हो जाएंगे ना, क्यों, क्योंकि मेरे एनाइन का साइज तो बड़ा है ना, तो सराउंड करने वाले कितने हो पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं इस साइज के एटम्स रखना चाहूँ तो मैक्सिमम मैं 2 ही रख सकती हूँ ना, यहाँ पे और तो इंट्रोड्यूस ऐसे तो कर नहीं सकती हूँ, गेटिंग इट। सो अब जब साइज बड़ा हो जाएगा तो लार्ज साइज वाले अब 4 एटम भी इसको सराउंड कर सकते हैं या 5 एटम भी इसको सराउंड कर सकते हैं, और बड़ा साइज हो गया तो अब और नंबर ऑफ एटम्स इसको सराउंड कर सकते हैं। ये चीज तो क्लियर है ना, ये तो आप समझ ही सकते हो इस चीज को, ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से, जितने ज्यादा एनाइन सराउंड किए होंगे उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतनी ही ज्यादा हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टेबिलिटी होगी, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है। सो एज वी हैव सीन, it is directly proportional to the radius of cation and radius ratio is directly proportional to the stability.
So on the same basis we can explain the geometry as well as coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर, हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसके बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी भी रेडियस रेशियो के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं और ज्योमेट्री भी रेडियस रेशियो के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर मैंने आपसे कहा कि एक पर्टिकुलर वॉइड को सराउंड किए हुए हैं या कैटायन को सराउंड किए हुए हैं 4 हमारे एटम या एनायन, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल. अगर मैंने कहा 6 सराउंड किए हुए हैं तो ज्योमेट्री क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 6, ज्योमेट्री वुड बी ऑक्टाहेड्रल. सो ऑन द बेसिस वी कैन tell the geometry, coordination number and stability of the particular crystalline solid. So that we have completed with the solid state, and in the next video we will start with your next chapter, that is chemical kinetics, and within 2-3 days I will take your test. So be prepared with the solid state. बड़ा interesting chapter है, थोड़ा imaginary है, पढ़ के अच्छा लगता है, सिंपल भी है, ठीक है ना. अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के लिए, जिससे इसमें आप पूरा स्कोर कर पाएं. न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, इवन दो दे आर सिंपल. पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग एफिशिएंसी है, कैलकुलेट करके देखिए, डेरिवेशन आ जाता है, रिलेशनशिप आ जाती है एग्जाम में, देन वेल एंड गुड. अदरवाइज हमारे केमिस्ट्री में डेरिवेशन बहुत कम आते हैं, फिजिक्स में ही आते हैं आपके डेरिवेशंस, ठीक है. सो डू प्रैक्टिस फॉर दैट एंड प्रिपेयर फॉर द चैप्टर. थैंक यू.